ओके फाइन. सो आई गेस लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लाइक ऑन शेप के बारे में देखा था. सो बेसिकली द ऑन शेप is a cloud based platform. Okay. And where we can do the 3D modeling and all that, so we can easily do it over there. Okay, without any additional configuration over. So इसके बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम थोड़ा जिस डिटेल में आई मीन इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, as well as we have started with the sketching, like how to do the sketches and how to create the sketch by using the on shape. उसके बारे में हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था. ठीक. ओके. देन आई गेस हम लोग ने कुछ ऑप्शंस देखे थे एंड एक एग्जांपल देखा था, इज लाइक हाउ वी कैन ड्रॉ द स्केच बाय यूजिंग द ऑन शेप. तो मतलब क्या क्या ऑप्शंस जितने भी हम लोग ने देखे थे वो सारे ऑप्शंस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वी हैव यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो स्केच मैंने बनाया था, यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट. Chalo, fine. Now what we will do is in today's session we will see remaining options over there, and then after that what we will do is we'll do the practice thing. Okay, तो जो आज का जो सेशन है जिसमें वट एवर द फर्स्ट थिंग इज देयर, तो मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करूंगा सारे जो भी ऑप्शंस है वो, एंड देन आई विल गिव यू टू स्केचेस, वन और मोस्टली टू स्केचेस. एंड आज विद इन द टाइम मतलब अराउंड 8 o'clock तक हम लोग का लेक्चर है. सो टिल देन you have to finish that thing, and as well as if you have any doubts then you can share the screen and you can ask. So basically for to us we will be doing that thing. Okay, chalo, fine. So I have already shared the screen. Is it visible? Okay, fine. Now yeah, what I'll do is I'll create another document. I will name it is it sketch 2. Okay. आई गेस वी हैव स्टार्टेड विद द लाइन. मतलब कल के लेक्चर में हम लोग ने लाइन देखा था, देन सर्कल, रेक्टेंगल, देन उसके बाद में मेरे ख्याल से आर्क शायद देखा था, एंड मॉडिफिकेशन कुछ कमांड्स देखे थे. ठीक है, सो अभी भी और कुछ कमांड्स बाकी है. फ्रॉम द ड्रॉ टूल बार सम ऑफ द कमांड्स आर देयर, एंड some of the commands from the modification are also there. So देखते हैं फिर एक एक क्या है वो. now how to start with the sketch, so just select the preferred plane over there. so जो भी particular plane पे आपको काम करना है, just select that particular plane. Okay, and then just click on this sketch over there. Okay, so you will enter into the sketch. Okay, fine. Now we have entered into the sketch, right? तो अभी अगर मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर स्केच अगर नॉर्मल करना है, सो सिंपली क्लिक ऑन दिस फ्रंट. ओके, सो आपका यहाँ पे फ्रंट आ जाएगा. what I'll do is I'll hide all these planes because I don't want these planes, so I'll hide those things. Okay, fine. So, चलो, I guess ये यहाँ तक हुआ था. we got I mean ये एक polygon बचा था. the spline is there, point, text, this project curve it is there, but it is not useful right now. Okay, because we are performing it for a very first time, so at that time this option is not useful. So at the time of 3D we will see this particular option. This one construction we have seen, fillet, trim, this one is remaining and the pattern is remaining. Okay, so we'll see that thing. So this particularly I'll start from the polygon over there. Okay, now in the polygon we have two options, the inscribe polygon and the circumscribe polygon. Okay, now what is the meaning of polygon first of all? So basically if you want to create any shape like equilateral triangle or square or pentagon, hexagon, okay, whatever the number of it is, nothing, I mean it is dependent on the number of sides. So जो भी आपको shape create करना है, but the size of that particular object it will be remain same for the say I mean all the entities it will be there. So it's like square अगर हम लोग ने बोला तो length and width it will be same, it is there. Okay, so in that case we are using a polygon option over there. Okay, now there are two options. The first is nothing but the inscribe,
एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज अ सर्कमस्क्राइब. सो बेसिकली ऑटोकैड में हम लोग ने ये चीज़, मैंने आई गेस दिखाया था कि आई डोंट रिमेम्बर, बट ऑटोकैड में ये चीज़ ना क्लियरली समझ में आता है. तो इंस्क्राइब मतलब क्या है कि एक सर्कल रहेगा वो पॉलीगॉन के अंदर रहेगा. ओके. एंड सर्कम मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपके लाइंस हैं, मतलब जो भी आप पॉलीगॉन क्रिएट करते हो, वॉट एवर द नंबर ऑफ साइड्स आते हैं, दो साइड्स will be what, it will be tangent to that particular circle. Okay. Whereas circumscribe में क्या रहता है, circumscribe में all the end points of that particular polygon will be lie on the circle. मतलब एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करते हैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, तो सर इंस्क्राइब सर्कल में पॉलीगॉन बाहर सर्कल अंदर रहेगा. वेयर सर्कमस्क्राइब में कैसा रहेगा, सर्कल के अंदर द पॉलीगॉन इट विल बी देयर. ओके. सो चेकआउट करते कैसे बनेगा. So I'll start with the inscribe polygon. Okay. Now first of all what we need to define is we need to define the center point of the polygon. So I'll use that thing. So मैं यहाँ पे देता हूँ. अभी है ना नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ना आपका हेक्सागोन ही यहाँ पे, मतलब बहुत से सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे, इवन इन कैटिया, इवन इन सॉलिड वर्क्स और ऑल द सॉफ्टवेयर आर देयर, तो बाय डिफॉल्ट जो एजेस, नंबर ऑफ एजेस रहते हैं ना, सो दैट विल बी 6 ओवर देयर. ठीक है. तो मैं पहले बना के लेता हूँ. ठीक है. Okay. चलो. Now I can see that the number are increase and decrease over there. जैसे जैसे मैं कर्सर नीचे लेके जा रहा हूँ, the number is decreasing. Okay. But जैसे मैं कर्सर ऊपर 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 लेके आ रहा हूँ, at that time the number is increasing over there. So you can see it. Okay. Just a minute. Yeah. We'll increase the number to, okay, about 25 it is not going. Okay. So minimum it is how much, minimum it is 3. Okay. Because कोई भी अगर एक sketch complete करना है, अगर मतलब कोई भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एरिया अगर हम लोग एक complete closed एरिया चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ 3 एंटिटीज ओवर देयर. तो मिनिमम 3 एजेस एंड मैक्सिमम इट इज 25. ओके. अब हर एक चीज में अलग अलग रहता है. मिनिमम तो सब में सेम ही रहेगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज. सो बेसिकली ऑटो कैड ले लो, सॉलिड वर्क्स ले लो, या फिर ऑन शेप ले लो. मिनिमम नंबर इज 3. अब मैक्सिमम नंबर हर एक में चेंज हो जाता है. ऑन शेप में दिस इज 25, सॉलिड वर्क्स में इट इज 40, मतलब मैक्सिमम साइड नंबर ऑफ साइड्स यू कैन पुट इट एज अ 40 ओवर देयर. एंड AutoCAD में the maximum number of sides you can put as a 1024. Okay, just remember this number. So that is in AutoCAD minimum is 3, maximum it is, okay, okay, sometimes it is go beyond that also. Mine sometimes mine was going also 50 over there. Yeah. That is actually dependent, but अलग अलग रहते हैं. नॉर्मली 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में 30-40 डिपेंडेंट रहता है, बट ऑटो कैड का एक फिक्स रहता है काउंट. सो ऑटो कैड में इट इज अराउंड 1024. ओके. डजेंट मैटर एक्चुअली. कुछ कुछ में हम लोग को रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ कुछ में नहीं रहता है. सो आई विल पुट इट. Yeah, this is going again 50. We'll check it, no issue. I'll put 1024. देखते हैं होता है क्या. It will be generating maybe. Okay, check कर लेते हैं, no issue. Yeah, so see, yeah, it is again there. See, can you see it? एकदम डॉट डॉट डॉट, बहुत पॉइंट्स मिलेंगे आपको. तो मतलब मैक्सिमम 1024 अगर आप रखोगे, सो दैट विल बी सर्कुलर. उससे ज़्यादा भी जाता है कि ट्राई कर लेते हैं. 1025 रख देता हूँ मैं.
Yeah, that is again going. Okay, so there is no limit right now. I can put as much as possible, but in AutoCAD it is restricted to 1024, whereas in SolidWorks it is restricted to 40 over there. Okay, doesn't matter आपको कितना चाहिए. नॉर्मली हम लोग या तो उसको स्क्वायर बनाते हैं, या तो उसको हम लोग पेंटागन बनाते हैं, या फिर हेक्सागन, मैक्सिमम ऑक्टागन. उससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है. So you can put it over there. So I'll put it 6 over there. So ठीक है, हो रहा है. हाँ, yes. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 एजेस. सो ये मेरा हेक्सागन हो गया. एंड यू कैन सी दैट ये जो सर्कल है, ये देखो सर्कल अंदर की तरफ आया, एंड जितने भी मेरे सारे एजेस है, सो ऑल द एजेस आर टैंजेंट टू दिस पर्टिकुलर सर्कल. तो अगर आप कहीं हर एक जगह पे इसका अगर आप रिलेशन देखोगे, देन यू विल सी दैट इट इज अ टैंजेंसी. ओके, क्लियर है? हेक्सागन, I mean polygon option. This is with what we can say inscribe in a circle. अब वही चीज हम लोग अगर क्या करते हैं, सर्कमस्क्राइब में क्या हो जाएगा, द सर्कल विल बी ऑन द आउटर साइड, एंड ये जो सारे पॉइंट्स है आपके, सो दैट विल बी ऑन द lying on the circle over there. So we'll see that thing also. So circumscribe about the circle, again center, एंड मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ, देन उसके बाद में जो नंबर ऑफ साइड्स चाहिए आई विल पुट दैट थिंग. चलो ठीक है. नाउ जस्ट चेक इट. ये सर्कल यहाँ पे सर्कमस्क्राइब में, and then all the end points of this hexagon are lying on the circle itself. Clear है? Any doubt for polygon? ठीक है, चलो. Then the next thing is nothing but the spline. अब spline हम लोग क्यों यूज करते, तो नॉर्मली spline मतलब क्या, इट इज अ कर्व. ओके, तो अगर कैसा है कि नॉर्मल कर्व अगर हम लोग को रहेगा तो यू कैन यूज द आर्क ओवर देयर, बट थोड़ा इरेगुलर शेप्स में अगर हम लोग को कर्व क्रिएट करना है, एंड बहुत बड़ा अगर अलग अलग कर्व्स है उसके अंदर, मतलब अलग अलग आर्क शेप है अगर उसमें, ठीक है, तो इरेगुलर कर्व शेप अगर ड्रॉ करना है, सो फॉर दैट वी कैन यूज द स्प्लाइन ओवर देयर. ठीक है. अब स्प्लाइन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली, मतलब बहुत ही यूजफुल है, बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट देखते हैं कैसा होता है. सो आई स्टार्ट ड्राइंग द स्प्लाइन. ये देखो, आपको जैसे उसका ओरिएंटेशन चाहिए, जैसे आपको वो चाहिए, उस हिसाब से यू कैन डू इट. ठीक है, दिस इज द स्प्लाइन. ये देखो आया. नाउ व्हाट आर दिस थिंग्स, ये यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे, देखो हर एक जगह पे, राइट. दीज आर कॉल्ड एज अ कंट्रोल वर्टाइसिस. मैंने जैसे बोला था कि स्प्लाइन क्या होता है, तो स्प्लाइन को ना मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब प्रॉपर ये जो कर्व्स एंड ऑल दैट है, तो ड्रॉ करते टाइम पे हम लोग रैंडमली उसको बना देते हैं, बट आफ्टर दैट इफ यू वांट टू एडजस्ट दैट थिंग, सो विद द हेल्प ऑफ ये कंट्रोल पॉइंट हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. देखो यहाँ पे, सो यू कैन सी इट. ओके, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ हैंडल ओवर देयर. तो सॉलिडवर्क्स में भी ये चीज है वहाँ पे. तो बेसिकली ये हैंडल मतलब क्या होता है, इट इज टैंजेंट टू द कर्व, मतलब जो हम लोग का कर्व का ओरिएंटेशन रहेगा वो कैसे होना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस वन. ओके, तो अभी अगर आपको लगा नहीं मुझे ये पर्टिकुलर वर्टिकल चाहिए, तो व्हाट यू विल डू इज यू कैन गो टू द वर्टिकल. अरे यार, ओके, वो डायरेक्टली मैनेज नहीं हो रहा है सॉलिडवर्क्स में ना. डायरेक्टली वो ये होता है, जैसे अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, ठीक है, एंड देन आपको कैसे चाहिए अलोंग द विच एक्सिस, तो यू कैन डिफाइन दैट थिंग. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो हाथ से भी डायरेक्टली. ओके, एंड बाकी जो आपको कंट्रोल करना है, सो फॉर दैट जस्ट कंट्रोल पॉइंट्स आते हैं. एक्चुअली कैसा होता है, पहले सॉलिडवर्क्स और इसमें एक डिफरेंस जस्ट बता देता हूँ. अब ये जो हैंडल है ना, ये सिर्फ मेरे को ना यहाँ पे दिख रहा है एट द स्टार्ट पॉइंट, एंड यहाँ पे ये एंड पे मुझे वो दिख रहा है, बराबर. बट सॉलिडवर्क्स में कैसा होता है, हर एक कर्व के यहाँ पे, मतलब जैसे ये पॉइंट है ना कंट्रोल पॉइंट,
तो वहीं पे आपको एक और हैंडल मिलेगा। तो हर एक पॉइंट का एक डिफरेंट हैंडल रहता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर कर्व है आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, so here also you can do the same thing, that if you want to manage the curve with the help of control points, you can manage that thing. Okay, so this is called as the spline. Then the किसको, इसको डायमेंशनिंग करने के लिए, फॉर दैट यू हैव टू डिफाइन ऑल द पॉइंट्स। सो बेसिकली जैसे अगर ये पॉइंट है तो फिर आपको इसका x भी देना पड़ेगा, एज वेल एज यू हैव टू गिव द y डिस्टेंस। जैसे मैंने ये दे दिया सपोज, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का द वर्टिकल डिस्टेंस, राइट। फिर हर एक जो जो पॉइंट्स है ना आपके, वो सब मतलब डिफाइन करने पड़ेंगे, एज वेल एज अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप इसमें भी ये दे सकते हो, रेडियस भी दे सकते हो, मतलब आर्क का कितना लेंथ चाहिए ना, सो दैट यू कैन डिफाइन ओवर देयर। क्लियर, ये देखो यहाँ पे यू कैन गिव इट ओवर देयर। जैसे यहाँ पे मुझे अगर 150 चाहिए, आप दे सकते हो। हर एक पॉइंट का मुझे देना पड़ेगा, तो उसके बाद में वो डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, देन द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे ये रहेगा। सो जस्ट अ मिनट। हम्म अगर आपको कैसा है कि स्प्लाइन है ना, स्प्लाइन, तो उस वो अगर आपके जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो बहुत दूर दूर तक है अगर, और आपको क्या करना है कि उसको प्रॉपरली अगर मैनेज करना है, तो यू कैन ऐड द कंट्रोल पॉइंट्स ओवर देयर। तो उसको कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे स्प्लाइन पॉइंट करके। ठीक है, अभी जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देयर इज अ गैप, तो उसको मैनेज करना है, तो फिर आप क्या करोगे, स्प्लाइन पॉइंट, एंड जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्लिक कर दो। ये देखो यहाँ पे आया पॉइंट। अब विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट यू कैन मैनेज द स्प्लाइन। ये देखो, ओके। तो आप जो भी डिजायर्ड शेप चाहिए, मतलब जैसा आपको चाहिए रहेगा, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट जो भी आपको एडिटिंग एंड ऑल दैट करना है, उसके लिए आप फिर कंट्रोल पॉइंट्स जो भी ऐड करना है या फिर जो भी मैनेज करना है, उसके साथ में यू कैन डू द थिंग। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, जस्ट 1 minute। ओके फाइन। सो क्लियर है spline एंड पॉइंट ऑन द spline? ठीक है, चलो देन आई गेस नेक्स्ट इज नथिंग बट योर पॉइंट्स। जो बेसिकली अगर रेफरेंस पॉइंट्स आपको अगर चाहिए, तो उस केस में यू कैन पुट अ रेफरेंस पॉइंट ओवर देयर। बट नॉर्मली फॉर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि यू रिक्वायर्ड अ पॉइंट ओवर देयर। ओके, तो मतलब कोई भी एक अगर पॉइंट आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो, बट जैसे मैंने बोला कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बहुत रेयरली इसका यूज होता है। ओके, बट स्टिल इफ यू वांट, जस्ट क्लिक करो एंड द पॉइंट इट विल बी देयर। ठीक है, इसको डायमेंशनिंग करना है तो यू कैन पुट द डायमेंशंस ओवर देयर। सो आप इसको x में भी दे सकते हो डायमेंशन कितना है, एज वेल एज y में भी दे सकते हो, राइट। I'll put it over here, and same thing I'll do with this thing. Okay, so it is defined. तो जो भी आपको रेफरेंस लगेगा, ओके, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? ऑल द थ्री ऑप्शंस, पॉलीगॉन, spline and the point over there.
ठीक है, चलो। सो दिस वाज ऑल द ड्रॉ टूल बार, दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रॉ टूल बार। नाउ हम लोग का मॉडिफिकेशन में बचा था दैट ऑफसेट करके स्लॉट एक बचा था, एंड मेरे ख्याल से द पैटर्न वाज देयर। ओके, सो चलेगा, देखते हैं फिर ये भी चीज़ क्या क्या है, तो क्विकली विल फिनिश दैट थिंग एंड देन आई गिव यू द प्रैक्टिस। ठीक है ना सर, इस हो गए? Yeah, okay, fine. I was joking. Anyways, चलो. So now the next thing is nothing but the offset over there. Now offset हम लोग क्यों यूज करते हैं बेसिकली? तो अगर एक कोई लाइन रहेगा सपोज, तो मुझे अगर क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करना है, सो फॉर दैट आई कैन यूज द ऑफसेट कमांड। ओके, सॉरी। तो अब लाइंस को ऑफसेट करना है, मतलब पैरेलली अगर हम लोग को एक क्रिएट करना है स्केच, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द ऑफसेट कमांड। वेर एज सर्कल में हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दो सर्कल्स जो रहेंगे उनका जो एक्सिस है या फिर जो भी सेंटर पॉइंट है, सो दैट विल बी द सेम। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द ऑफसेट कमांड ओवर देयर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑफसेट कैसे वर्क करता है। So just go through this offset, shortcut है O. Okay, so specify, I mean you need to define the, I mean जो भी लाइन है आप सिलेक्ट करो उसको, एंड देन आपको कौन से डायरेक्शन में ऑफसेट चाहिए, सो जस्ट चेंज दिस वन। अभी ये कैसे लेफ्ट में आया था ना, ओके, इफ यू वांट दैट इनटू द राइट साइड, सो यू कैन पुट इट ऑन द राइट हैंड साइड ओवर देयर। ओके, एंड बीच में ये ऑफसेट डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस आपको रखना है, सो यू कैन कीप इट ओवर देयर। नाउ इट इज 5 ओवर देयर। अगर आपको लगा नहीं मुझे चेंज करना है, आई वांट टू मेक इट 50 और 20 रखते हैं हम लोग सपोज, तो यू कैन पुट 20 ओवर देयर। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन क्रिएट हो जाएगा एंड देन ये दोनों के बीच में द डिस्टेंस विल बी ऑफ 20 ओवर देयर, राइट। चलो एक और ट्राई हम लोग करते हैं दैट ये तो मैंने एक सिंगल लाइन के साथ में ट्राई किया था ना, तो अभी ऐसे ही हम लोग मल्टीपल लाइन के साथ भी होता है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज, एक कनेक्शन में मैं ऐसा कुछ प्रोफाइल बना देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसा बना दिया, एंड फॉर दैट आई यूज द ऑफसेट कमांड। सो यूज ऑफसेट, सी, जब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन आई एम सिलेक्टिंग ऑल द एजेस, ओके, एट दैट टाइम देखो कंटिन्यूएशन में वो पूरा बन रहा है। जब मैं एक ही एज सिलेक्ट कर रहा था उस टाइम पे एक ही एज मेरा ऑफसेट हो रहा था, बट नाउ इन दिस केस द कंप्लीट जो भी मेरा चेंड है, मतलब पूरा जो भी जितना भी मैंने प्रोफाइल बनाया वो पूरा का पूरा प्रोफाइल सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। इफ यू वांट अ सिंगल लाइन, इन दैट केस यू कैन सिलेक्ट द सिंगल लाइन, वेराज अगर आपको लगा नहीं मुझे पूरा का पूरा प्रोफाइल अगर यूज करना है, सो यू कैन यूज द प्रोफाइल। तो मल्टीपल सिलेक्शन करना पड़ता है यहाँ पे। थोड़ा ये एक है, सॉलिड वर्क्स में वो एक ऑप्शन अच्छा था हम लोग को कि दैट वहाँ पे ना एक सिलेक्ट चेन करके ऑप्शन रहता है, तो आप अगर एक ही एंटिटी सिलेक्ट करते हो ना, तो उस टाइम पे उसके कंटिन्यूएशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते थे। तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक सिलेक्ट करो एंड ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफसेट कमांड, राइट। सो पैरेलल लाइंस क्रिएट करना है या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर क्रिएट करना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज द ऑफसेट कमांड ओवर देयर। फिर नेक्स्ट है दैट इज नथिंग बट द स्लॉट करके। ठीक है, तो स्लॉट अगर हम लोग को करना है क्रिएट, तो आप इसमें स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करना है स्लॉट, देखो, पहले एक लाइन या फिर आर्क जो भी आपको चाहिए रहेगा, या फिर स्प्लाइन जो भी आपको चाहिए, दैट यू कैन क्रिएट ओवर हियर। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, तो इट विल बी अ स्ट्रेट स्लॉट रहेगा। स्लॉट में ना दो टाइप रहते हैं, बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, पहला जो स्लॉट रहता है ना वो ऐसे रहता है, एक आपका एक्सिस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड देन ये ऐसा कुछ तो रहेगा। ओके, यहाँ पे ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पे रहेगा, ये वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पे रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट स्लॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा एक रहता है ना वो ऐसा आर्क स्लॉट रहता है, तो मतलब ये एक आर्क में बना देता हूँ, और फिर आफ्टर दैट ये ऐसा कुछ तो रहेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आर्क स्लॉट। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पूरा आर्क एंड ये बना, मतलब ये पूरा स्लॉट पूरा का पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैसा होता है, जस्ट यू हैव टू गिव द एक्सिस, मतलब ये बीच का कैसा एक्सिस चाहिए, स्ट्रेट चाहिए तो लाइन डिफाइन करो, अगर आर्क स्लॉट चाहिए तो आर्क डिफाइन करो। तो देखते हैं कैसा होता है। आई सिलेक्ट द आर्क स्लॉट, सॉरी, एंड सिलेक्ट करो ये वाला, ये देखो। ओके, द स्लॉट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब ये जो 20 है ये डायमीटर कौन सा है, ये वाले सर्कल का डायमीटर है। सो इफ यू वांट टू चेंज इट, सिंपली डबल क्लिक ऑन इट एंड देन यू कैन चेंज द डायमेंशन। ओके, क्लियर है ये वाला। एंड ये जो लेंथ है नाउ इट इज नॉट डिफाइंड, नो, सो फॉर दैट यू कैन गिव अ लेंथ टू दिस, दिस इज 20। क्लियर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन स्लॉट। वैसे ही अगर आपको लगा नहीं मुझे आर्क स्लॉट भी क्रिएट करना है, तो आप एक आर्क ड्रॉ करो पहले। ये मैंने 3 पॉइंट आर्क बना दिया ऐसे, एंड नाउ आई विल यूज द स्लॉट। ये देखो, ओके, डायमीटर जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं इसका, सॉरी, दिस इज 10। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं, देखो क्लियर है, एनी डाउट इन दिस? Then the next thing is nothing but the pattern. Then the next thing is pattern. So pattern में अभी दो type of patterns रहते हैं, एक रहता है rectangular pattern and दूसरा रहता है circular pattern. For example, अभी अगर मैं ये एक rectangle बना देता हूँ, ठीक है, and I want the multiple instances of this particular pattern, but ये सारे instances कैसे पता है, equidistant है, मतलब x डायरेक्शन में भी सबके बीच में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, वो in y direction again the distance it will be same. Okay, so for that what we can do is we can go for a rectangular pattern. So just select the linear pattern, और rectangular pattern भी बोलते हैं उसको. Okay, so I will select the object, तो मैं इसको select कर लेता हूँ. Okay, now you can see it over here कि ये distance बता रहा है कि दोनों के बीच में कितना distance define करना है. So I'll use this one as a 10, और यहाँ पे ये number of instances बता रहा है, so I want say 5 और 8 हम लोग देते तो फिर ज़्यादा आ जाएंगे. Okay, so the 8 instances it will be there. Okay, at the same time it is showing me the second direction, because linear pattern मतलब कैसा होता है, that is x and y दोनों डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ x में ही चाहिए रहेगा तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दे दो, डिस्टेंस दे दो दोनों के बीच में कितना चाहिए। इफ़ यू वांट टू अल्टर द डायरेक्शन आप यहाँ से उसको अल्टर कर सकते हो, आई मीन लेफ्ट में अगर चाहिए तो लेफ्ट में ले सकते हो, राइट में चाहिए तो आप उसको राइट में भी रख सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको लगा नहीं मुझे अपवर्ड में भी चाहिए या फिर मतलब एक्स एक्सिस में भी चाहिए, वेट अ मिनट,
ठीक है, काम कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एडिट नहीं हो रहा एक्चुअली। थोड़ा कैसा भी है, हाँ, मतलब अभी भी इसमें थोड़ा एडवांसमेंट बाकी है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो अगेन आई विल गो टू द लीनियर पैटर्न। डिस्टेंस कितना चाहिए, यू कैन डिफाइंड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 10 mm, एंड हियर इट इज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, आई विल पुट एज अ 8, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ दैट इज, अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, सो आई विल पुट 5 ओवर दैट। ओके, तो अभी मुझे वहाँ पे भी वो शो करेगा कि कितना डिस्टेंस चाहिए। हियर अगेन आई विल पुट अ 10, ये देखो हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर क्रिएटेड, मैंने एक डायरेक्शन में 8 इंस्टेंसेस दिए, एंड दूसरे डायरेक्शन में आई हैव गिवन द 5 इंस्टेंसेस, सो 8 into 5, so total it will be 40 instances, that will be equidistance। ओके, अब ये x एंड y का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो, जैसे अगर ये x में मुझे लगा कि 15 चाहिए तो मैं 15 भी रख सकता हूँ, मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा, जो भी आपका नंबर ऑफ इंस्टेंसेस रहेंगे, सो दैट यू कैन गिव इट ओवर देयर। ठीक है, क्लियर है ये वाला? And once you want to finish in that case, just left click the bow and it will be created। ठीक है, चलो, एनी डाउट? Okay, fine. Then the next thing is nothing but the circular pattern। Okay, एक सेकेंड, इसको जहाँ डिलीट करते हैं। Now the next thing is circular pattern। So basically circular pattern कैसे रहता है, अभी जैसे एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एंड ऑन दिस सर्कल आई विल ड्रॉ अनदर सर्कल। यहाँ पे से मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट इज, मुझे ये ऐसे सर्कल के मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए। सो हाउ टू डू दैट थिंग, जस्ट अ मिनट, आई मेक इट कंस्ट्रक्शन। ओके, फाइन। नाउ व्हाट आई वांट इज, इसके मुझे मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए, तो हाउ टू डू इट, सो फॉर दैट जस्ट गो टू द सर्कुलर पैटर्न। ओके, सर्कुलर पैटर्न में अगेन यू जस्ट सिलेक्ट द एंटिटी, जो भी एंटिटी आपको पैटर्न करना है वो आप सिलेक्ट करो, एंड आपका यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको कितना काउंट चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। से मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, तो यू कैन पुट अ 6 ओवर देयर। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर एंगल भी अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इज लाइक अल्टर कर सकते हो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, राइट? क्लियर है? सो दिस इज सर्कुलर पैटर्न। सो इसमें आप जितने इंस्टेंसेस चाहिए उतने इंस्टेंसेस दे सकते हो। 6 चाहिए, 8 चाहिए, कभी कभी हम लोग को 8 भी रिक्वायर्ड होते हैं, कभी कभी 6 रिक्वायर्ड है, कभी 5, कभी 4, डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट वी कैन से फीचर, आप उतने इंस्टेंसेस दे सकते हो उसमें। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट एक ट्रांसफॉर्म करके, तो बेसिकली काम कर लेते हैं, विल यूज अ लाइन, या
शेयर करना। कैमरा। अच्छा, मोबाइल से ये कर रहे हैं क्या? नहीं, तेरा वीडियो ऑफ हो गया। हाँ। हाँ, अभी दिख रहा है ना। हाँ, दिखा। तेरे इसमें ना वो इक्वल ही नहीं आ रहा है, वो इशू आ रहा है। एक बार वापस कर उसको। ना, इट इज नॉट क्लियर या। अभी देख, अभी बराबर है ना। इज इट ओके नाउ? वो इक्वल ही नहीं आया था, अनइक्वल आया था वो। दैट इज अगेन सिलेक्शन पे वो डिपेंडेंट है कि कैसे सिलेक्शन करना है। ठीक है। क्या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब इस सिलेक्शन हम लोग ने किया ना। अच्छा। बट मैंने भी 15 किया है यहाँ पे, ये देखना। वो एक्चुअली जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये आई मीन ये हो जाता है। सेलेक्ट दिस। अभी ये मेरा कैसा इक्वली शो कर रहे थे, रेस में ना वो अनइक्वल आया। ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। ओ, एक सेकेंड सॉरी। ये मेरे इसमें ये इक्वल ही आ रहा है, देखो। ठीक है, तो इसकी वजह से वो वैसा आ गया। ओके। अब मैं अगर यहाँ पे काउंट भी बढ़ाता हूँ, इफ आई मेक इट 15, सो भी हो जाएगा बराबर। हाँ। ये एंगल की वजह से हो जाता है वो। ने सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया है ना, इसकी वजह से वो वैसा होता है। तो जो इनिशियल हम लोग करते हैं ना, सो दैट विल बी ओवरऑल एंगल के लिए, मतलब 360 डिग्री के लिए रहता है। फिर हम लोग ये जो एंगल है ना, ये देखो। इसको अगर आप मैनेज करोगे तो ये बराबर आएगा, ये देखो। ओके। तो मतलब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये 180 डिग्री में वो 15 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ, ये देखो ऐसा होता है वो। ओके। तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा, सो दैट विल बी 360। ठीक है। बट अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ऐसे। क्लियर? ये यहाँ से हम लोग वो मैनेज कर सकते हैं, देखो।
अभी बराबर आया देखो। बट वही चीज़ अगर मैं थोड़ा भी उसको चेंज करूँ, से फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो इफ यू वांट टू चेंज इट तो आप यहाँ से उसको चेंज कर, अभी ये होगा नहीं बिकॉज ये एडिट निकल गया है ना। ओके, बट जब भी हम लोग करेंगे एट दैट टाइम यू कैन मैनेज दिस वन। तो कभी कभी ऐसा रहता है ना कि 180 एंगल में हम लोग को 4 सर्कल चाहिए, 360 में नहीं चाहिए, तो उस केस में यू कैन सेट द एंगल फ्रॉम हियर इटसेल्फ। क्लियर है? सो दिस इज सर्कुलर पैटर्न। मेरा थोड़ा स्लो ये हो रहा है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। एंड देन एक लास्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है। एक मिनट। ठीक है, चलो, सो व्हाट आई डू इज आई यूज द लाइन ओवर देयर। ठीक है, एंड देखते हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट आई सिलेक्ट द लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देखो, यहाँ पे आप मूव कर सकते हो उसको। तो ये देखो, यहाँ पे अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो ये मूव हो जाएगा, आई मीन सॉरी इलोंगेट हो जाएगा ये वाला इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको अपवर्ड खींचता हूँ तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ आई वांट टू रोटेट दिस थिंग तो मैं इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो मुझे अगर क्या करना है, इफ आई वांट टू रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू स्ट्रेच इट, मतलब एक्सटेंड करना है या फिर इसको कम करना है, सो दैट आई कैन डू इट ओवर देयर। ओके, एंड देन ये देखो मेरा लाइन क्या हो गया, पहले मैंने उसको स्ट्रेच किया था एंड देन आफ्टर दैट मैंने अभी उसको जब रोटेट किया एट दैट टाइम व्हाट हैपन, ये मेरा जो लाइन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट हो गया। क्लियर? यहाँ पे ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे ना आपको लिख के ऐसा कुछ नहीं आता है, मतलब नॉर्मली बाकी सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, बट यहाँ पे कैसा है कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ओके, सो आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। ये देखो, ओके, ये हम लोग इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, आई मीन कॉपी के लिए ये वाला, सॉरी मूव है ये वाला। ठीक है, देन अगर उसका इलांगेशन एंड ऑल दैट करना है तो उसके लिए फिर ये वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शंस। ठीक है, जो एरोज है दैट इज फॉर इलांगेशन एंड ये जो है दैट इज फॉर द रोटेशन एंड दिस वन इज फॉर द मूविंग ऑप्शन। क्लियर? यहाँ पे ना वो ये नहीं कहीं पे भी है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, दैट मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन सा ये आई मीन क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में कैसा रहता है कि आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन दिए हुए रहते हैं, मूव एंटिटी, कॉपी एंटिटी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दिस मैनिपुलेटर यू हैव टू डिसाइड द थिंग। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस सो फार? हेलो? ओके फाइन, चलेगा। सो दैट्स इट विद द ऑल स्केचिंग ऑप्शंस। ठीक है, what we will do is we will have a practice based on this. ठीक है, so आज है ना मैं